Chapter 6. A tiger comes to town, Part 2. Sometimes a small problem becomes complicated because of a lack of proper information and communication. This can also happen due to an incorrect understanding of a situation. बहुत सी बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम भी हमको आगे बड़ा रूप ले लेती है. रीजन क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके लिए. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? It could be because we analyze a situation according to our fixed ideas about it. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पहले से उस चीज को assume कर लेते हैं कि नहीं ये चीज हमको इसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगी. In part 1, a tiger comes to town. The people on the street run helter-skelter to save themselves from the tiger, even though the tiger does not want harm to anyone. Here, helter-skelter means continuously. जैसे टाइगर स्ट्रीट पर चल रहे थे उसी टाइम पे लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन टाइगर डज नॉट वांट टू हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना था. The teachers in the school do not allow the circus master to go into the room to fish the tiger. The teacher, स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला कि सर्कस मास्टर को अलाउ नहीं करेंगे ताकि आप रूम के अंदर जाइए और टाइगर को बाहर लेके आइए. This is because they do not understand or know the true nature and habits of a tiger. किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल टीचर की. उन लोग क्या बोला कि उनको पता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टाइगर के रिगार्डिंग क्या नेचर होना चाहिए, उनको नहीं पता है. People believe that the tiger are ferocious animal. Ferocious means dangerous animal to be feared. हर किसी को यही लगता है कि टाइगर कैसा dangerous animal है. Now let's discuss in brief. Okay. Remember, in part 1 of the story, a tiger comes to town. The tiger reached a school, entered the headmaster's room and spread himself on the floor to sleep. The teacher locked the room from outside and would not get the circus master to go inside to bring the tiger out despite his repeated requests. Why do you think no one allowed him to go into the room? What happened next? This story continues in the lesson. जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, टाइगर जो है वो स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है. एंटर करके हेडमास्टर के रूम में जाके वो सो जाता है. उसी टाइम पे टीचर बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है कि टाइगर बाहर ना आ पाए. कुछ देर के बाद सर्कस मास्टर को पता चलता है कि उनका टाइगर जो एक स्कूल में हेडमास्टर के रूम में है. हेडमास्टर अंदर है. सर्कस मास्टर बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं टाइगर को बाहर लेके आ सकूं, लेकिन स्कूल अथॉरिटी जो टीचर्स है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे. ओके. नाउ meanwhile I awoke after a very good stretch of sleep and heard voice outside. ये कौन बोल रहा है? टाइगर. I woke after a very good stretch of sleep and heard voice outside. और वो नींद के बाद अब वो उठा है. I looked up and saw the headmaster cowering in the attic. I stretched myself and roared for no particular reason except that I felt alive. जैसे ही कुछ टाइम पे नींद के बाद जैसे टाइगर उठा, उसके बाद उसने देखा कि हेडमास्टर जो है cowering in the attic. Cowering means ऊपर जाके एकदम घबराना. Okay? What does mean cowering? Shrinking in the fear. Back in fear. Attic means ऊपर के लेयर पे जाके बैठ गए डर से. I stretched myself and roared for no particular reason except that I felt alive. टाइगर ने उस वक्त चिल्लाया जैसे उनकी रोर आवाज होती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था. The poor human being in the loft must have trembled at the moment. उस वक्त जो हेडमास्टर थे वो उस वक्त घबरा गए थे. क्यों? क्योंकि एकदम से शेर की आवाज सुनी तो उससे वो घबरा गए. I wish to assure him that I was not going to hurt him. I raised myself, put up my forelegs on the wall and scratched it and growled softly, which made him more nervous. क्या किया यहाँ पे? जो टाइगर थे उसने क्या किया? बता रहे थे कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ. थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने फोरलेग खड़े की, मतलब खड़े हुए. उसके बाद वॉल पर उन्हें स्क्रैच कर रहे थे. सॉफ्टली ग्रूल में घूमे. देन वो बता रहे कि मैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा. लेकिन ये सब चीज देख के जो हेडमास्टर थे वो क्या और भी ज्यादा नर्वस हो रहे थे.
एंड आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड। कौन? टाइगर बता रहा है कि उसको पता है कि मेरा मास्टर क्या है, बाहर है। आई कुड हियर हिम से, क्या बोल रहे हैं हेडमास्टर, जो सर्कस के मास्टर क्या बोल रहे हैं, नो वन इज गोइंग टू स्कूल, यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विद मी। हेडमास्टर सर्कस मास्टर है वो क्या बता रहे हैं कि आप घबराइए मत, मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ, कोई नहीं जाता तो मैं जाता हूँ और मैं टाइगर को बाहर लेके आता हूँ, मेरे साथ बाहर आएगा। One of you take a ladder in and help the headmaster come down from the attic. यहाँ पर जो सर्कस मास्टर है वो क्या बोल रहे हैं कि आप एक लैडर ले लो जिससे हेडमास्टर जो एटिक मतलब टॉप फ्लोर पे जो बैठे हुए ताकि वो वहां से बाहर आ सके। Do you mean to say you are going in as you are without arms or protection? They asked him. बाहर के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने जो सर्कस मास्टर है उनको पूछा, बोला कि आप अंदर जाना चाहते हैं वो भी विदाउट एनी आर्म्स एंड प्रोटेक्शन। आर्म्स मींस कोई भी हथियार के साथ, हथियार के बिना और कोई भी प्रोटेक्शन के बिना आप अंदर जाना चाहते हैं? यस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। यही चीज मैं करना चाहता हूं। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी सेड, अब जो टाइगर कमिटी के जो चेयरमैन है वो यहां पर आए थे। By the powers I have been the second honorable magistrate, I give you notice that you shall not open nor enter the room. उन्होंने उनकी कमेटी के मेंबर जो है चेयरमैन आए वहाँ पे, उन्होंने बताया कि मेरे पास पावर है जिससे मैं तुमको बताता हूँ कि आप ना ही अंदर जा सकते हैं और ना ही आप इस रूम को ओपन कर सकते हैं। My master से, master means यहाँ पे सर्कस मास्टर है। Why do you prevent me from going near to the टाइगर? आप मुझे क्यों नहीं जाना देना चाहते टाइगर के पास में? They were at loss to answer. उस टाइम पे किसी के पास कोई जवाब नहीं था। It's unlawful to commit suicide, they said. ये तो ऐसी बात हो गई कि आप खुद से अपना सुसाइड करना चाहते हैं, ओके? और ये अनलॉफुल है, हमारे लॉ में इस चीज का अधिकार नहीं है। Maybe said by my master. But which section of a law says that a man should not approach a tiger? Are not circus people doing it all the time? तब मास्टर ने क्या बोला कि ऐसा लॉ में कहाँ लिखा है कि आप टाइगर के पास नहीं जा सकते, और वैसे भी सर्कस में जितने भी लोग हैं वो सब तो ऑलरेडी उन्हीं के साथ रहते हैं। Yes, replied the chairman weakly, धीरे से, yes. But that it's different. लेकिन ये बात एक अलग चीज है, आप सर्कस में काम करते हैं वो एक अलग है और यहाँ की बात अलग है। I can tame a tiger. What does tame means? Tame means train. I can train a tiger. ये कौन बोल रहा है? सर्कस मास्टर बता रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी टाइगर को ट्रेन किया हुआ है। It's after all my life that I am risking. Already मैं तो इस रिस्क के बीच में ही रहता हूँ। Next. The chairman was visibly confused and bewildered. In that case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibility of your life and death. उस टाइम पे चेयरमैन ने बताया कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि मैं फाइनली इसको जवाब क्या दूं। तो उस टाइम पे चेयरमैन जो थे उन्होंने बोला कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट मींस वन काइंड ऑफ आप रिटर्न प्रूफ बोल सकते हैं कि आपको उसमें अंदर लिखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की एंड डेथ की रिस्पांसिबिलिटी वो आपकी खुद की होगी। ऑलराइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। ये कौन बोल रहा है? सर्कस मास्टर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे एक पीस ऑफ पेपर दे दीजिए और उसके अंदर क्या लिखना है वो भी आप मुझे बता दीजिए। द मैजिस्ट्रेट took out a sheet of paper from his briefcase and gave it to my master. किसने? मैजिस्ट्रेट ने अपने बॉक्स में से उसमें ब्रीफकेस में से एक पेपर की शीट किसको दे दी? उसके मास्टर को। My master wrote the chairman's dictation, absolving everyone there from all the responsibilities. चेयरमैन ने क्या किया? उनको पेपर दिया। मास्टर ने उसी पेपर के अंदर जो जो चीजें मैजिस्ट्रेट ने बोली थी वो सारी चीज उसके अंदर लिख दी कि सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी खुद की होगी। He signed the document and returned it with the comment. उन्होंने
पूरा सब कुछ लिख दिया उसके अंदर, जो जो मैजिस्ट्रेट ने बोला था वो सब, और फाइनली मैजिस्ट्रेट के हाथ में पेपर दे दिया विद अ कमेंट। क्या बोला गया? आई वॉज साइन इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मैजिस्ट्रेट। ये सिर्फ मैंने आपकी एक रिस्पेक्ट थी, इसलिए मैंने आपको ये पेपर लिख के दिया। Although I am convinced it's uncalled for all for and irrelevant, you are exercising unnecessary authority। आप unnecessarily इस चीज को बता रहे हैं, अदरवाइज इसके लिए कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको ये unnecessary authority है, ये कि कोई भी अपने पास क्यों नहीं जा सकता है जानवर के पास। The chairman looked at the document and said, "Stop. Tell me what is it that you have written here." चेयरमैन बोला कि रुक जाओ एक मिनट, आपने मुझे पीस ऑफ जो पेपर पे लिख के दिया वो क्या है? Only what you have dictated। मास्टर ने क्या बोला कि जो आपने मुझे डिक्टेट करने को आपने जो चीज बोली मैंने तो वही लिखी हुई है। In a language we didn't know, I can't accept it। ये किसने बोला है? मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि आपने जो भी चीज लिख के दी है वो मुझे पता नहीं चल रही है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तब सर्कस मास्टर ने क्या बोला कि ये कौन सी लैंग्वेज में? इट्स इन संस्कृत इन विच आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज जिसके बारे में हम भगवान की बुकें सारी लिखी होती है। आई राइट ओनली संस्कृत ऑल्दो आई न्यू 10 अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जापानीज। ठीक है, मास्टर क्या बोला कि मुझे संस्कृत आती है और नेक्स्ट 10 लैंग्वेजेस भी आती है। Without further ado, he put the key into the lock of the headmaster's room। बिना टाइम गवाए उन्होंने क्या किया, जल्द से जल्द उस की को लेके लॉक खोल दिया उस रूम का, जहां पे हेडमास्टर एंड टाइगर वहीं पर थे। Let's go now, said by master। मास्टर ने किसको कहा? टाइगर। चलो अब हम चलते हैं। You must realize that human beings, for all their bluster and trim creatures, they are likely to panic when they see you. Don't look at them. That's the only way to maintain one peace of mind। मास्टर ने क्या बताया यहाँ पे कि देख लिया तुमने, you realize that human for all bluster and tame creature, उनको बता दिया कि आप किस तरीके का माइंडसेट है ह्यूमन का। They are likely panic when they see, जैसे वो तुमको देखते वैसे ही घबरा जाते हैं। तो अब इसके लिए तुम एक काम करो, उनको मत देखो, सिर्फ अपना सेट ऑफ माइंड से हम सिर्फ यहाँ से निकल जाते हैं। The R.K. Narayan is the author of the chapter। Okay, now let's move towards our exercise। Okay, exercise number 6.1। Okay, here we have, let us learn new words। exercise number 6.1। okay, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी, जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए लेकिन वो क्या है, मिसिंग है। उसी के सामने ठीक उसके आपको क्या है, सारे मीनिंग दिए हुए एंड उसी के सामने आपको उनके एंटोनिम्स दिए हुए। यहाँ पर मीनिंग आपके सामने जो है वो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन आपको एंटोनिम फाइंड करना है जो एकदम मिक्स फॉर्म में, आपको करेक्ट एंटोनिम ढूंढना होगा। एंटोनिम मींस ऑपोजिट, मीनिंग्स मींस सिनोनिम्स, लेकिन आपको यहाँ पर करेक्ट उसकी स्पेलिंग पुट ऑन करना पड़ेगा, लेटर्स यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो है कवर, इसका मतलब है टू क्रॉच इन फियर, एकदम से घबरा जाना, जिसका करेक्ट आंसर मीनिंग है, जिसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू एक्ट ब्रेवली, एकदम निडरता से काम करना। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड वन, जिसको मिसिंग है, ओके, एश्योर, ASSURE, एश्योर का मतलब टू मेक श्योर, कन्विंस, एकदम आप श्योर होने चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, जिसका सेम ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू बी अनश्योर, आप श्योर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड इज पैनिक, एकदम घबरा जाना, सडन एंड अनरियलाइजेबल फियर, एकदम से कोई बिना वजह के आप एकदम जल्दी घबरा जाते हैं। इसका थर्ड आंसर कौन सा हो जाएगा, टू रिमेन काम, एकदम शांत रहे, एकदम कोई एकदम जल्दी घबराना नहीं है। द फोर्थ वन इज टीम, टीम का मीनिंग क्या होता है,
easily frightened, frightened का मतलब होता है scared, एकदम घबरा जाना। सेम मीनिंग अगर ये ऑपोजिट क्या होगा, जो नहीं घबराता होगा। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रेव। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होगा, टू बी फर्म इन वंस डिसीजन, एक ही डिसीजन में आप जो ले सकते हो उसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड। तो सेम इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड, जो चीज डिसाइड नहीं की गई है। द सिक्स्थ वन इज विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको आप इजीली देख सकते हैं। ओके, तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऐसी चीज जिसको आप नहीं देख सकते, जो चीज क्या होगी, इनविजिबल होगी या तो हिडन होगी, दोनों का मतलब एक ही होता है। एंड द लास्ट वन इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, जब मीनिंग उसका दिया है नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो होगा इंपॉर्टेंट। इररिलेवेंट की जगह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलेवेंट। ठीक है, क्लियर? ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। हियर वी हैव 6.2 आवर एक्सरसाइज। क्या दिया आपको यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, कुछ वर्ड्स जो है मिसिंग है, आपको इस जगह पर यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सारे, ये सारे ऑप्शंस में से जो यहाँ पर सुटेबल आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, चलिए, जैसे कि आपको फर्स्ट दिया हुआ है, a good team leader is one who works along with his team and does not dash on others। एक अच्छा लीडर कौन सा है, जो अपने टीम मेंबर के साथ काम करे और उनके ऊपर एक्सरसाइज अननेसेसरी अथॉरिटी ना दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Since there was a plenty of evidence and several eyewitness reports in support of her, the court finally dashed her for all blame for the accident। Finally court ने क्या किया, उसको absorbed कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस तरीके से यहां पे हम सॉल्व करेंगे। The dog dashed at every passerby। क्या है यहाँ पे, the dog dashed at every passerby। तो हम यहाँ पे सर्टेन ऑप्शंस में देख के बताएंगे कि कौन सा सुटेबल रहेगा इसके लिए। यहाँ पर आएगा ग्रोल। ग्रोल का मतलब क्या होता है, बार्क। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोल। ओके, चलिए नेक्स्ट। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस यू स्काउंड्रल dash the officer when I came to know that his most trusted officer has cheated him। ये सेंटेंस से पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है सामने वाला वो बहुत ही गुस्से में है। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस यू स्काउंड्रल, तो मतलब यहाँ से बाहर चले जाओ। क्यों, उसको गुस्से में बता रहे हैं। क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड हमारे, आएगा ब्लस्टर्ड। ठीक है, ब्लस्टर्ड इसमें एकदम गुस्से में वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, ब्लस्टर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इफ यू वांट टू लूज वेट डोंट लूज योर डैश बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना वजन कम करना है तो डैश स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली। कौन सा ऑप्शन में से आ सकता है ये चीज, यू हैव टू ऑलवेज कीप पीस ऑफ माइंड। अपना माइंड स्टेबल रखिए उस चीज के ऊपर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा इस जगह पे। नेक्स्ट last one, as he dashed his arms to pick up the blow of salad laying at end of the table, his hand accidentally hit his mother's favorite jug which fell a broke। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक लड़का है जिसने अपने कुछ सलाद लेने के लिए वो जा रहा था, लेकिन उसने हाथ अपना जैसे ही आगे बढ़ाया तो टेबल एक्सीडेंटली गलती से उसकी मम्मी का जो फेवरेट जग था उसको हाथ लग गया और जिससे वो चीज
टूट गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा लास्ट एक ऑप्शन बच रहा है, इसका क्या आएगा, स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड करना। हम किसी भी चीज को एक्सटेंड करके कोई चीज लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेच। ठीक है, चलिए।